सहजं दोषयम् इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदामा तपा कर्मा नात्याजम् इति चापरे. So learned men declare that all kind of fruitive activities should be given up, but there are yet other sages who maintain the acts of sacrifice, charity and penance should never be abandoned. Similar to this question is asked in 3rd chapter, 5th chapter and now again 18th chapter. One side Krishna is asking Arjuna to fight. Other side is asking him to renounce. So how both the things go together? It's not easy. 3rd chapter this question was asked. Again this question was asked in the 5th chapter in the beginning. Again this question is asked now in the 18th chapter. Now Krishna is himself. Arjuna did not ask, but Krishna is developing this question. That some people say we should do sacrifice, charity and penance. Some people say we should not do. In spiritual life itself. So the point is, just like we are studying in Bhagavatam every day, what is being established in Gita and Bhagavatam is the transcendental nature of the Lord, which is beyond the material vision. Similarly, transcendental nature of devotional service, which is beyond the vision of materialistic person. A materialistic person cannot see the transcendental nature of devotional service. प्रभु जी बोलते दोनों एक सा ही लगता है, क्या फ़र्क लगता है? ये भी खाना बना रहा है, ये भी खाना बना रहा है, क्या फ़र्क है? लोग यही सोचते हैं ना. अब जैसे इतने सारे घर है, ये लोग क्यों नहीं आते? वो भी घर है सोचते हैं, घर ये भी घर ही है, वो भी घर ही है, फ़र्क क्या है? Here we are doing devotional service. नहीं तो क्या सेम है, क्या फर्क क्या? So it is anywhere when we start doing devotional service, that doesn't remain a house, it becomes a temple. So what is the difference between house and temple? Where devotional service is practiced, even that house does not remain house, it becomes temple. Correct? Just like prasad. वो भी खाना है, आप भी खाना बना रहे हो, क्या फ़र्क क्या? फ़र्क है, वो भगवान को नैवेद्य है. So those people who are not spiritually advanced cannot see the difference. Prabhupada says there is wide gulf of difference, but दिखता नहीं है. Okay? In Bhagavad Gita also you see Arjuna asked this question. When Krishna says that I taught this knowledge to sun god, मैंने सूर्य देव को एक ज्ञान समझाया था, immediately Arjuna said, wait a minute Krishna, ये क्या बोल रहे हैं आप? करोड़ों साल पहले आप सूर्यदेव को बात किए थे, क्या है ये सब भाई? आप हमारे संगी हैं. How can I believe all this? So why Arjuna asked this question? Acharya said not for himself, because he knows answer to this will establish Krishna's transcendental nature. Correct? इसका अगर आंसर आपको समझ आ गया, आपको समझ आएगा कि कृष्णा भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है. इसलिए also told Krishna, जरा वो विश्व रूप तो दिखाओ. So to convince people Krishna is not material, he is Divya. Janma karma chame Divya. Janma karma chame Divyam. It is transcendental. Tapo Divyam. Nayam dev devajam niloke kashtan kaman arate vajame tapo Divyam. Again Divya. Why Divya? The activities done in devotion service are Divya. लगता सेम है, क्या कर रहे हैं हम लोग? भागवत पढ़ रहे हैं, लोग अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है. उसको पढ़ के नरक जाओगे, इसको पढ़ के वैकुंठ जाओगे. महत् सेवां द्वारम आहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम. हमारे एक ही चॉइस है हमारे पास. ये जो शरीर है ये यंत्र है. इस यंत्र को आप नहीं चला रहे, भगवान चला रहे हैं. आप साइड में बैठे हुए बस. जैसे कोई कार चला रहा है, आप साइड में बैठे हुए. कार आप नहीं चला सकते. आपको कार चलाना नहीं आता, जैसे मेरे को नहीं आता. आप कार नहीं चला सकते, बस बैठे रहो. तो इस यंत्र को आप नहीं ला सकते. इवन अगर मैं बता भी दूँ डॉक्टर को कितने फैक्टर से चलता है, वो लोग भी नहीं संभाल पाएंगे इसको. इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड. करेक्ट?
There are billion reactions going in one cell only. What we can control? We cannot. It's extremely complicated यंत्र. जैसे आप एरोप्लेन में हैं तो उसमें क्या होता है, 10-15 बटन होते हैं, ये दबा दो वो दबा दो, एक सिंपल सा यंत्र है, वो सब सेटअप तो चलेगा. इस यंत्र को कैसे संभालोगे? इसमें तो 1000 बटन है, अनलिमिटेड बटन है, इसको नहीं संभाल सकते आप इस बटन को नहीं चला सकते. आपको मालूम भी नहीं है क्या क्या हो रहा है. We do not know what all is going on in this body. Agree? There are unlimited things are going on. We have some theories, but we don't know exact details what is going on. Half knowledge is a dangerous thing. So therefore, we can't control this body. Krishna controls this body. We are sitting as a passenger. जैसे पैसेंजर होता है ना, आप कोई कार हायर करते हो आजकल, उबेर या क्या है, ओला हायर करते हो, ऊबर एंड ओला, और क्या करते हो, बैठ जाते हो. वो पूछता है किधर जाना है. आपको बस वी आर गिविंग ए विश, आई वॉन्ट दिस, एंड देन कृष्ण टेक्स केयर. बट व्हाट यू वॉन्ट डिपेंड्स आपके संग के ऊपर. आपका जो इच्छा है कृष्ण पूर्ण कर देंगे, लेकिन आपकी इच्छा संग के अनुसार आएगी. सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो. इसलिए सत्संग रखो. सत्संग है हमेशा. प्रभुपाद एक क्षण वेस्ट नहीं करना चाहिए. एक एक क्षण पढ़ते रहो. कुछ भागवत में क्या लिखा है, भगवत गीता में क्या लिखा है, पढ़ते रहो. क्या होगा उससे? आपको आपका कॉन्शियसनेस चेंज होता है संग से. जैसे आपका कॉन्शियसनेस चेंज होगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो कहाँ पे आपका बेसिक, आपका फ्रीडम. लोग सोचते हैं मैं हूं जो डिसाइड किया इधर जाएंगे, मैं हूं डिसाइड किया उधर जाएंगे. वो तो ठीक है, उसके अनुसार आपको कर्मफल भी मिलेगा, लेकिन वो डिसाइड करने की भी क्षमता आपके पास नहीं है. वो संग से आ रही है. क्या संग आपका है, क्या संग आप करते हो. करेक्ट. इसलिए एटलीस्ट 1 घंटा डेली प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना चाहिए. आपका संग बदल रहा है. नहीं तो जैसे भगवत गीता में आप देखिए, अर्जुना खप 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 पूरे चैप्टर में बोलता रहा कुछ भी. कृष्णा ने उसको एक शब्द रिप्लाई नहीं किया. उसी लेवल. ही डिड नॉट रिवील नॉलेज, बिकॉज स्पिरिचुअल नॉलेज, yesterday we were discussing, no, अन्नमाया, प्राणमाया, मनोमाया. पहले किसी तरह क्या कन्नड़ा में लोग क्या करते हैं, ऊटा क्या बोलते हैं, ऊटा हो गया तरह यही क्या, अन्नमाया. बिकॉज लोग उसी लेवल में है. खाना हो गया, जिंदगी सफल हो गया. शूद्र का जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए उसको. ऐसा अच्छा सा ऊटा होने का और जिंदगी सफल और जाके सो जाने का. प्राणमय थोड़ा वो, उसके बाद थोड़ा और, उसके बाद धन दौलत है तो उसको सुरक्षा करने का, और उसका जीवन सफल हो गया और उसको कुछ और नहीं चाहिए. ही फील्स हीज लाइफ इज अचीव्ड. 1-2 लाख महीने का आजकल यही है. महीने का 1-2 लाख थोड़ा सैलरी हो जाए, एक कार हो जाए, एक घर मिल जाए, जिंदगी सफल है ना. यही है लक्ष्य यहाँ पे लोगों का. उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. या थोड़ा ज़्यादा 1 लाख नहीं, 5 लाख, इतना धन हो जाए, एक घर हो जाए. और मनोमय ये सब हो गया. उसके बाद काप फिलॉसफी. जैसे अर्जुन भी बड़ा फिलॉसफी बोल रहा था भगवत गीता. ही वॉज इमिटेटिंग अ नॉर्मल मनोमय पर्सन. एंड कृष्णा डिड नॉट गिव हिम स्पिरिचुअल नॉलेज एट दैट लेवल. इसलिए हम भी लोग मिलने जाते हैं किसी को, भाई जन्माष्टमी आप जरूर आइए. हाँ हमको मालूम है कृष्ण जी ये थे वो थे. हम लोग चुप रहते हैं, बोलते रहो बोलते रहो, कोई फायदा नहीं बात करके. हाँ. देन उसके बाद आता है विज्ञानमय. सो असली नॉलेज आपको आती है जब आप शास्त्र को सुनना शुरू करते हैं. जब आप शास्त्र को सुनोगे नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा आपको. ग्रेट. जैसे हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करते हैं, ये स्पिरिचुअल है. तो इसका जाप करने या इसके कीर्तन से हमको अनुभव होता है ये जो भगवान का नाम है भौतिक नहीं है. तो सिमिलरली अब शास्त्र के अध्ययन से भी आपको पता चलता है ये भौतिक नहीं आध्यात्मिक है. ठीक है ना. तो जितना आप संग करेंगे उतना आपका जिंदगी का फायदा है. भागवत में लिखा है कि सूरज उठने से और अस्त होने से एक एक आपका दिन लेता रहा है और आपका मृत्यु आने वाला है. एक एक दिन जा रहा है. एक्सेप्ट फॉर अ पर्सन जो भक्ति का संग कर रहा है. भक्ति का संग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं.
शास्त्र अध्ययन करके संग कर सकते हैं, और कैसे संग करोगे? टेल मी हाउ डू? हरि नाम जाप से, हरि नाम संकीर्तन से, और डिवोटी से, और डीटीज, और प्रसाद, और कृष्ण सेवा ऑल्सो. सो इन डिफरेंट वेज आपको संग करना है. अग्रेड? भयम द्वितीय अनुवेशिता स्यात्. अगर आप इन भक्ति के संग में नहीं रहे तो भयभीत सिचुएशन के लिए रेडी हो जाओ. बिकॉज माया को एक क्षण चाहिए, बस ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए. जैसे अजामिल का एग्जाम्पल है. अजामिल बहुत अच्छा ब्राह्मण था, एक क्षण का गलती है बस. क्या हो रहा है उधर, जरा देखें तो फट पकड़ लिया. एक गलत डिजायर आपका दिल में चिपक गया, कितने जन्म या भटकोगे आप गिन भी नहीं पाओगे. एक डिजायर काफी है. व्हाट डू यू से? फाइन और नॉट? एक भी डिजायर आपके दिल में अगर चिपक गया, फंस जाओगे. तो देयरफॉर एक क्षण भी फ्री नहीं रखना. अव्यर्थ कालत्रम. भक्त कितना प्रगति कर रहा है ये दिखता है कि कितना टाइम वो बर्बाद कर रहा है, उससे बदलता है. अगर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करो, बहुत सीरियस बात कह रहे. दिल में क्या हो रहा है बहुत मुश्किल है पता करना किसी के, है ना. भाई माइंड रीडर तो बना नहीं है अभी तक, बनाने का कोशिश कर रहे हैं. बट दे से वी कैन प्रेडिक्ट बाय सीइंग हिज ब्रेन वेव्स, 70% वी कैन टेल. ये लोगों की थ्योरीज आती रहती है. बट इवन इफ point is that we are not able to know what is going in the mind, at least presently. What is going in your mind is not spiritual, it's material. So we are not bothered about it, even if we can find out. Because so we are bothered about the soul which is sleeping, not about the mind which is material. Okay? Even if you can find out, but the point is, satam pasangad mama virya samvido. ठीक है? So we are in a difficult situation in the material world. Yeah. So it is no, we do not know what is going in your mind, at least presently. But if we have to see how you pass your 24 hours, कितना भक्त सीरियस है ये देख के पता चलता है उसके 24 घंटे वो क्या कर रहा है हर मिनट. एक्चुअली अच्छा रहा एक डायरी में लिखते रहो, ये घंटा में ये किया, ये घंटा में ये किया, ये घंटा में लिखते रहो. करें इतना घंटा सोया, इतना घंटा. सो यू कीप योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट रहना चाहिए. यू योर सेल्फ विल वॉच हाउ मच टाइम यू आर वेस्टिंग नाउ. यू कैन अंडरस्टैंड. एग्री? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देन यू विल अव्यर्थ कालत्रम. सो इफ समबडी इज देयर हु डज नॉट वेस्ट 1 minute, इज अ वेरी एडवांस्ड डिवोटी. In fact, nectar of instruction, the definition of Uttama, Madhyama and Bhakta is different from Chaitanya Mahaprabhu's definition in Chaitanya Charitamrita. Two different definitions. You notice this? Nectar of instruction says, no, you should take Diksha only from Uttamadhikari. But the definition of Uttamadhikari is different there. What is the definition of Uttamadhikari? He is constantly engaged in spreading the Krishna consciousness movement. Even the definition, nectar instruction, first shloka of a guru, it says what? Vacho vegam, manasa krodha vegam, jiva vega, uttarapastha vegam. This is sadhaka who's fully controlled these things. Correct? It is not talking about his pure devotion to Krishna. You're understanding? What is Rupa Goswami doing? If try to understand this. So similarly, so a person is spiritually very advanced. जब दिल में क्या है तो भाई मालूम नहीं ना हमको. But if he is able to do Vacha Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiva Vegam, Udarapastha Vegam, we know he is advanced. You got it? See, spiritual तो कहीं है भाई, हमको तो दिखता नहीं, लेकिन उसका material plane में कुछ reflection तो आने का. Right? Just like we discussed, अगर कोई आध्यात्मिक में प्रगति करता है तो 4 चीज उसमें डेवलप हो जाती हैं. क्या थी? दया, तपा, then शौचा, हाँ, सत्य. ये 4 चीज डेवलप होने. So similarly, if somebody is advanced spiritually, the most important thing developed is he is constantly engaged in Krishna's service. क्षण. अभी संसार दामलानो में क्या कहते हैं? प्रतिक्षणा. What is the shloka? श्री राधिका
माधुर्योरपारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना. देन हाँ, प्रतीक्षणा, हर क्षण. That is the symptom of a acharya. What is the symptom? प्रतीक्षणा. एवरी क्षण, एक एक क्षण भगवान की सेवा. तो अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करना है तो एक एक क्षण को बहुत वैल्यू रखना चाहिए. ठीक है. सो दैट इज द सिम्टम. एनीवे, कमिंग बैक टू द श्लोका दैट वी हैव इन डिस्कशन टुडे, इट सेज दैट charity, sacrifice, penances, all these activities have to be done if they are leading to devotion service. Prabhupada is taken as an example of Vivaha Yagna, one sacrifice, one upchara. It's a Vedic ritual. What is the Vedic ritual? Vivaha Yagna. When boy and a girl are getting married, there is a Vivaha Yagna. And Prabhupada was in America. उस समय Indians बहुत कम थे अमेरिका में, very rare. And Prabhupada did not want to bother to search for a so-called Karmakandi priest. Prabhupada himself did the Vivaha Yagna. He is a sannyasi. Generally सन्यासी तो विवाह में भी नहीं जाते. क्या उनको ये तो सांसारिक चीज़ है, शादी कर रहे लोग. But then when his disciples, जो लोग बड़े हो गए थे, अभी उनको क्या करें disciples को? Because they all joined as brahmachari, but some people have to be married. It's like it's not possible for them to remain brahmachari. तो प्रपंच की होगी क्या करें? Yes, somebody call Sridhara. Milk offering is there. So कि प्रपंच क्या करें उसके लिए? So ये बहुत एक मुश्किल प्रश्न आ गया प्रपंच जी को. आप सन्यासियों पर से. The Prabhupada went ahead and did marriage. अब इंडिया में जो कर्मकांडी लोग, जो लोग खाली रूल्स रेगुलेशन थे, सन्यासी शादी में नहीं जाता है तो शादी कर दी वो बैठ के, और उनको कुछ मालूम नहीं. हाँ, तुम क्या करोगे, इसको पूरा जीवन इसके साथ निभाओगे. हाँ, बीवी को तुम भी इसका सेवा करोगे, जैसे होता ना हमारे. प्रभुपाद जी ने तो खुद किया विवाह यज्ञ. और उसके बाद सिचुएशन ऐसा आ गया कि people criticize the Prabhupada, therefore writing in the purport, it is not to be given up if it is leading to spiritual advancement. It cannot be given up. So लिखा है. That is tamasic. Correct? What do you say? Sharanagati means anything which is needed for spiritual advancement should not be given up. So here the point is, it cannot be neglected. It cannot be sacrificed. Charity, penance cannot be neglected. Very, very important point. As I said, many people feel we can do. No. Anything which is needed for spiritual. Our principle is of Krishna Bhakti is, whether Krishna will be pleased with this, we go ahead and do it. Even though traditionally people cannot understand. Correct? So this is what Prabhupada develops. There Bhagavad Gita is saying, certain activities in Satoguna dutifully should be done. In Rajoguna, so you have to do it. थोड़ा मुश्किल है. जैसे सुबह उठना बड़ा मुश्किल है. जैसे मंदिर में हमारा कंपल्सरी है 4:30 people should be there. Anybody staying here? करें? नहीं बड़ा सुबह है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? करें? 4:30 ठक you should be ready for मंगल आरती. Agreed? Compulsory in every ISKCON temple. Why? नहीं बहुत गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, जाओ. तपस्या नहीं है तो इधर नहीं रहो. तप है ना, तपस्या, दैट इज तप. सो इन समर और इन विंटर, अब यहाँ का विंटर क्या है, अमेरिका में सोचो विंटर क्या टेम्परेचर होता है उधर, -डिग्री टेम्परेचर. और लोग इतना मुश्किल होता होगा उनको नहाना, सोच लो, आसान नहीं है ये नहीं. और उस समय जब मूवमेंट शुरू हुआ था कुछ धन दौलत भी नहीं था मूवमेंट में, तो दे विल बी टेकिंग कोल्ड वाटर बाथ. जनरली इट इज़ गुड टू टेक कोल्ड वाटर बाथ. हॉट वाटर से पूरा शरीर खराब हो जाता है, सारे नर्व्स खराब हो जाते हैं. एग्री? एक्सेप्ट व्हेन वी हैव सम प्रॉब्लम, वी आर फ्रेश आफ्टर कोल्ड वाटर बाथ. आफ्टर हॉट वाटर बाथ यू फील लाइक स्लीपिंग. आप सोचो वो लोग ठंडे पानी से सुबह सुबह नहा रहे, कहाँ 1 or 2 डिग्रीज. इतना होता कि एक आदमी अपने सिर पे पानी नहीं डाल सकता, इतना ठंडा है. तो दूसरे को बोलता तू डाल मेरे लिए, मैं तेरे में डालूंगा. यू गॉट इट? योर माइंड विल नॉट अलाउ.
You put water on yourself. It's not allowed. They'll tell friend, you bucket bhara dal, and he'll put, and then वो डालेगा. What all austerities they took. ठीक है ना? It's very austere actually. So it may be, even if you are taking bath with say little warm water, it is an austerity in a winter time to take bath. Similarly, गर्मी में भगवान के लिए खाना बनाना, भगवान का वैसे भी सेवा करना, सब तप है. साधना मतलब तप. मन नहीं करता साधना में, बट ये करना है इसलिए किया जाता है. So we give it up, that is not very auspicious. That is not very auspicious. We cannot give it up. It has to be done. That is the point. So when out of difficulty we give it up, that is rajasic. And what is tamasic? छोड़ो यार. मतलब attempt भी नहीं करना. So therefore there are different activities discussed here, and sacrifice, penance and austerity should be done. Srila Prabhupada ki, Bhagavad Gita ki. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare